sharing more information. Now, let's shift our focus to other developments. As per sources, say that the speculation on the names of Dharmendra Pradhans in the race for the BJP national president are rife. According to sources, other names including Manohar Lal Khattar, former Chief Minister of Haryana, Shivraj Singh Chauhan, former Chief Minister of Madhya Pradesh, Bhupendra Yadav and Prahlad Joshi are also in the race. While in fact there have been deliberations and speculations on the names of the top pick for the BJP president next, who is going to succeed the incumbent and current BJP president and the Minister for Health, JP Nadda. And right now, the BJP president's choice and pick that was supposed to be finalized by the early months of this year are now going to be fulfilled in the coming days, is what we are picking. Viewers, Sanjay Sharma, my colleague, is joining me live on this source-based information that we are gathering. Sanjay, what are you picking up in the latest? The top pick for the BJP president race are in fact emerging, and Dharmendra Pradhan seems to be leading on that race. Sanjay, brief our viewers about the latest. देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता जा रहा था। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना था। चुनने के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें नाम है मनोहर लाल खट्टर का, जो केंद्रीय मंत्री भी है, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के। शिवराज सिंह चौहान का नाम है, प्रहलाद जोशी का नाम है, भूपेंद्र यादव का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज के अनुसार जो जानकारियां मिल रही है उसपे धर्मेंद्र प्रधान इस समय लीड कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके बारे में कहा जा रहा है कि उम्र कम है और ऐसे स्टेट से आते हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य नहीं है। यानी कि बीजेपी चाहती थी कि किसी नॉन हिंदी स्टेट के किसी लीडर को अगर नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाए तो ज्यादा ठीक होगा। पहले नाम चल रहा था कि साउथ इंडिया से अगर किसी को बनाना है, दक्षिण भारत से, तो प्रहलाद जोशी के नाम पर चर्चा हो रही थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर लगता है कि मोहर लग सकती है, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अब तक देश के सबसे ज्यादा राज्यों के चुनाव प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और लंबा उनको चुनावी अनुभव हो चुका है। साथ ही साथ उनके जो इक्वेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों के साथ कार्डियल है। साथ ही साथ आरएसएस के साथ भी उनका रिलेशन ठीक है। साथ ही साथ उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बीजेपी और आरएसएस का है, तो लिहाजा हो सकता है उनके नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन अभी जब तक मोहर नहीं लग जाती तब तक कोई भी नाम तय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के नाम की अटकलें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक नाम पर मोहर नहीं लगना बाकी है। Sanjay, I'll request you to kindly stay on with us on the broadcast, and thank you very much for sharing more updates. Now, let's even get more, information, as sources say that the schedule for the elections of the BJP's national president is likely to be released in the first week of June. Meanwhile, the names of the state presidents of 5 to 6 states is likely to also be announced soon. Well, this in the run-up to pick the BJP's top chief. Now, in the run-up to that, 5 to 6 states of the BJP-ruled government are also likely to get the new presidents, is what we are learning. And on that note, I have my colleague Sanjay Sharma, who's there with me live on the broadcast. Sanjay, speculations are emerging, and as far as names are concerned, now it's not just the national presidency for the BJP, but also for the state presidentship. The names are likely to be announced for the next 5 to 6 states. What are you picking up? देखिए, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो बीजेपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार उसके आधे से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन हो चुके होना चाहिए। तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 40 स्टेट है देश में, तो उसमें से अभी तक कुल मिलाकर के 14 राज्यों में 14 स्टेट्स में अभी तक स्टेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। 14 स्टेट में नए स्टेट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 से 6 राज्यों में स्टेट प्रेसिडेंट के नाम बाकी। तो जो 5 से जो 6 राज्य बचे हुए हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, ये इस तरह के स्टेट है जिनके नामों की घोषणा, जिनके प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा जल्दी हो सकता है, अगले हफ्ते या हो सकता है इसी हफ्ते में, कभी भी हो सकती है। तो ये जैसे ही 5 से 6 अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और ये सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि जून के पहले सप्ताह में, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में
कभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। लगभग 2 हफ्ते का ये चुनाव का कार्यक्रम होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। 2 हफ्ते तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें नॉमिनेशन की तारीख होगी, विड्रॉल की तारीख होगी, स्क्रूटनी की तारीख होगी, और अगर कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं आता है तो फिर एक सर्वानुमति से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसका सिंगल फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि बीजेपी की अभी तक की परंपरा यही रही है कि अब तक जितने भी इलेक्शन हुए बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के नाम पर, वो सभी के सभी सहमति से हुए, कॉन्सेंसस से हुए। All right, Sanjay. Well, on that note, I'll request you to kindly stay on as what we are learning further.